Hello students, in the series of board preparation, today we will discuss the most important poem of CBSE board, A Roadside Stand. Dear students, we can't ignore this poem because definitely the question will be from this poem. जब भी मेरे पास मैसेज आते हैं या फोन आते हैं बच्चों से, जब भी मैं पूछता हूँ बेटा किस पोएम में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो सीधा उनका सर अ रोड साइड स्टैंड एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। तो आज इस रोड साइड स्टैंड के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाना है और आप लाइन बाय लाइन देखिए इस पोएम को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टाइटल, व्हाई द टाइटल इज अ रोड साइड स्टैंड। A roadside stand, it constructed outside a small house by the side of the road, highway, expressway, seems to request the fast speeding cars to stop. The villagers, the poor folk, they have set up a roadside stand because it seems to request the fast speeding cars to stop. And a roadside stand, it is a symbolic of the desire of rural people to earn money by selling products to the rich travelers from city. If we talk about the characters, we will find in this poem the two groups are here. First group, a city elites, and in this city elites the rich people are. And second one, a rural people. They are the poor people. They are the common villagers, those who have surrendered their land to the government to construct highway, expressway, and now they are on the road. रोड साइड स्टैंड से ऐसा समझिए बेटा कि कभी कभी जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो लोग एक कमेंट नहीं करते कि बेटा रोड पे आ जाओगे। तो आज ये हमारे जो पुअर फार्मर्स हैं, द पुअर विलेजर्स हैं, रूरल पीपल हैं, दे हैव सरेंडर्ड देयर लैंड टू द गवर्नमेंट एंड नाउ दे आर ऑन द रोड। बिफोर यू रीड, here there is a question कि have you ever stopped at a roadside stand? What have you observed there? तो have you ever stopped? Definitely we stopped at a roadside stand. So here, let's come to the poem. The little old house was out with a little new shed. So there is a little old house, and in front of that little old house, before that little old house, there is a roadside stand. So on the roadside, there is an old house which has an extended a tin shed. In front at the edge of the road where the traffic is sped, and where the traffic, it means car, buses, trucks, they are going on full speed. A roadside stand that too pathetically played, and the condition of this roadside stand is very pathetically means very pathetic. A very pathetic condition is, it would not be fair to say for a dole of bread, and you can't say that these roadside stand, they are they are set up there for a dole of bread. Dole of bread means a piece of bread. They are not begging there. They are not the beggar there. They are not requesting for a dole of bread, but for some of the money. They have set up their roadside stand. They are selling the seasonal fruits and vegetables, some refreshments and snacks, because of they can earn some money. The cash, they can earn the cash whose flow supports, and so that with the help of this cash they can support their family. The flower of cities from sinking and withering faint, the polished traffic fast with a mind ahead. The flower of cities, it means
The the rich people, they are going on the full speed. Police traffic here indicate the vehicles, luxurious cars of the rich people, police traffic. And police traffic passed with a mind ahead. With a mind ahead. They are not looking. They are in the arrogant way. They are sitting in their car and they are not looking towards the roadside, and they are going in their in their car full speed. The flower of cities from sinking and withering fan, correct, the flower of cities, yes, the natural beauty of the city is now sinking. The flower of the cities are sinking because of the pollution, air pollution and dust and withering fan, and they are now dull and faint. If you want to see the natural beauty, so you have to go far away from the city. And where you can enjoy the natural beauty? At roadside, highway, expressway, away from the city. Of ever aside a moment, then out of sorts. Ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred. The one negative thing is the elite people, the rich people, the city dwellers, they are not purchasing anything. They are not stopping their car at the roadside stand and having the landscape marked with the artless paint, but they are blaming. What they are blaming? These roadside vendors, these roadside dwellers, they are marred. Marred means they are destroying the landscape. Landscape means natural beauty, scenery, beautiful scenery. They are destroying the beautiful scenery with the artless paint. Even the board, the signboard that they had set up. It means on the signboard, suppose that they have written I stand, the word stand. In that word stand, they have written, they have made the N, letter N wrong and S turned wrong. It means even they don't know how to write S and how to write N letter. They have written it wrong. And it indicates the illiteracy and carelessness of the poor people. Offered for sale wild berries in a wooden carts, and these roadside dwellers, they are offering what they are offering? Wild berries in a wooden carts. Wooden carts means containers made of wooden containers of crook-necked golden squares with silver words. These are the vegetables of USA, American vegetables, are beauty rest in a beautiful mountain scene, and it appears that the beauty is rested where in the mountain scene. You have the money, but if you want to be mean. Now, the poet Robert Frost, he is asking a question to the roadside. He is asking the question to the city dwellers, the travelers, those who are going in their luxurious car in the full speed. They are not stopping their car. But if you want to be mean, you are so mean minded. Want to be mean means a mean minded you are. You people are so mean minded. Why keep your money this Why keep your money this crossly? This crossly means angrily. And poet is asking the question, what you will do to this money? Why you are keeping money in your pocket? Why you are not stopping at the roadside stand and go along? You are going on full speed. You are not caring about the roadside dwellers. You are not purchasing anything from the roadside. The heart of the scenery would not be my complaint. Here, in this stanza, the poet is telling the heart to the scenery. These roadside dwellers,
Yes, they had destroyed the landscape of the roadside. It's not my complaint. The hurt to the scenery would not be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. So they are trusting sorrow. Try to understand the meaning of trusting sorrow here. Trusting sorrow. Trusting sorrow means earlier the villagers, the roadside vendors, they had sowed their trust over the government authorities on the rich people. They have set up their roadside stand. The customer will be there. The rich people will stop their car and they will get the customer. But now their trust, what they had sowed, it had been changed into sorrow. So trusting sorrow. Try to understand the meaning of trusting sorrow. Whatever the trust was sown by the roadside dwellers, now their trust has been changed into the sorrow. That is the trusting sorrow. Here, far from the city, we make our roadside stand. This is the complaint of the roadside vendors, roadside dwellers, poor people. Here, far from the city, शहर से दूर, far from the city, we make our roadside stand. We have set up our roadside stand and ask for some city money to feel in hand so that we can earn some city money. We can earn some city money from the city dwellers and we can also feel money in our hand to try if it will not make our being expand so that we can also survive our family, we can support our family and give us the life of the moving pictures promise that the party in power try to understand the important line and give us to the life of the moving pictures promise. Try to understand the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping promise. My dear student, the party that was in power that time, the party in power, when the land deal was made and they have surrendered their land to the authority, that time the party, the government party in power, it's said to be they had made some promises. But now that promises are just like a moving pictures. The promises that was made by the party in power, the promises that was made by the government, it was just like a moving pictures. Moving pictures means सपने दिखाना, सपने बेचना. जो सपने दिखाए थे गवर्नमेंट ने लैंड डील करने के बाद हम आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे, आपको रीसेटल करेंगे शहर में. आप यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. ये सब सारी प्रॉमिसेज अब किस तरह है उनके जीवन में? मूविंग पिक्चर्स की तरह. इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किड, व्हेन दिस डील वाज proposed, then it is in the news. This was the news in the media, this was the news in the channel, media channel. What was the news? All these pitiful kin. Who is the pitiful kin? The roadside dwellers, the villagers, the poor people, the rural people. They are the pitiful kin here. All these we brought out mercifully gathered in. It means they will be settled very mercifully. They will be relocated. They will be settled. Where they will be settled? Next to the theater and the store. They will be settled in the city. And their residence will be next to the theater and the store. ये सपने दिखाए गए थे कि आप अपने खेतों में जो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना बहाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप अपना लैंड गवर्नमेंट को सरेंडर करो. गवर्नमेंट यहाँ से हाईवे ले जाएगी, आपको कंपेंसेशन मिलेगा, आपको कॉलोनी मिलेगी, आपके हर मेंबर को, हर घर से एक मेंबर को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और आप रीलोकेटेड किए जाओगे. कहाँ? नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर. तो ये सपने
दिखाए गए थे, बेचे गए थे उस समय की गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन नॉट सिंगल प्रॉमिस कुड बी कंप्लीटेड। तो फाइल ग्रिडी गुड डूअर्स, इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रिडी गुड डूअर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रिडी गुड डूअर्स। अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो यहां क्या है, इलिट्रेशन है, ग्रिडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स। एंड ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब हुआ कि सो कॉल्ड गुड डूअर्स बट दे वर द ग्रीडी। मतलब जो उस समय गवर्नमेंट के जो मीडिएटर आए, जब जो उस समय के ब्रोकर्स थे वो आए क्या करने, कि दे वर शोइंग कि दे आर द वेल विशर, दे आर द गुड डूअर्स ऑफ दीज पुअर फार्मर्स, बट देयर वाज ए ग्रीड बिहाइंड, देयर वाज अ ग्रीड बिहाइंड दैट। इसके पीछे उनका एक लालच था कि उनको अगर लैंड डील करा देंगे, अगर इनको कन्विंस कर ले जाएंगे तो उनको कमीशन मिलेगा। तो इसी ग्रीड के चक्कर में वो आए सो कॉल्ड गुड डूअर्स बन के। ये यहाँ जो अथॉरिटी के जो ऑफिशियल अथॉरिटी के जो एजेंट थे, ब्रोकर्स थे, मीडिएटर थे, ये उनकी बात हो रही है, गुड डूअर, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे। एंड दीज गुड डूअर्स दे they made them beast of prey for their personal benefits, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, अपना खुद का पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उन्होंने उसको क्या बनाया, बीस्ट ऑफ प्रे। उन्होंने जो पुअर विलेजर्स थे, रूरल पीपल थे, उनको क्या बनाया, अपना शिकार बनाया, बीस्ट्स ऑफ प्रे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको अपना शिकार बनाया। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, उनके आसपास तब तक वो मंडराते रहे जब तक कि वो बेचारे पुअर पुअर पीपल, रूरल पीपल एग्री नहीं हो गए, उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दे दिया इस लैंड डील के लिए, तब तक उनके आगे पीछे मंडराते रहे। स्वार्म ओवर देयर लाइव इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स that are calculated to soothe them out of their wits, out of their wits means out of their trick, wits, अपनी चालाकी से, अपने जो दिमाग को यूज करके उन्होंने जो उनके सामने डेटा रखा, दैट आर कैलकुलेटेड, एक कैलकुलेटेड डेटा, ऑलरेडी कैलकुलेटेड डेटा उनके पास रखा और उनको इस लैंड डील के बेनिफिट्स के बारे में बताया कि इस लैंड के बेनिफिट्स इस प्रकार से होंगे। किसी को पकड़ लिया, दादा आप इस खेत में कितना पैदा कर लेते हो, साल के 5 लाख 6 लाख 7 लाख, लैंड डील कराओ तो इसमें आपको इसका एक तो 5 टाइम्स, 5 गुना आपको गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी, आपको कॉलोनी मिलेगी, और आपके किसी एक मेंबर को जो फैक्ट्री सेटअप करने जा रही है गवर्नमेंट, जो शॉपिंग मॉल और बड़े बड़े जो है स्टोर्स खोलने जा रहे हैं, उसमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन सभी प्रोमिसेस वो क्या हो गए, केवल मूविंग पिक्चर्स की तरह है, वो केवल एक पिक्चर्स बन के रह गए, जैसे सपने दिखाए उन्होंने, सपने बेचे लेकिन किया कुछ नहीं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, उनको ये बताया कि हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, ये कैसे वो आराम करेंगे, हाउ दे विल live a luxurious life, how they will take rest even that during the daytime, they sleep all day। और आज कंडीशन क्या है कि these poor people, these rural people, they are sleeping all day। Earlier when they were doing hard work in their farmhouse, तो इन द नाइट दे वर टेकिंग अ साउंड स्लीप, रात में बहुत अच्छी नींद आती थी उनको। लेकिन आज क्या कंडीशन है कि पूरा दिन उनके पास कोई काम नहीं है, सुबह से शाम तक केवल कस्टमर का वेट कर रहे हैं अपने नए बने रोड साइड स्टैंड पे, नॉट सिंगल कस्टमर इज स्टॉपिंग देयर। तो उसके बाद क्या है, उनके पास कोई काम नहीं है, दे आर स्लीपिंग ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। इस प्रकार से जो हमारे उस समय की गवर्नमेंट थी, ऑफिशियल अथॉरिटी थी, या फिर जो भी ब्रोकर्स वगैरह थे, उन्होंने कैसे उनकी स्लीपिंग नाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया।
सीधी सी बात है, जब दिन भर आपको कुछ खाने को नहीं मिला तो रात में नींद कैसे आएगी? योर स्लीपिंग नाइट विल बी डेफिनेटली डिस्ट्रॉय इन द एंशियंट वे। जैसे कि पहले के लोगों का कोई एक रूटीन नहीं होता था, कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं, उसी प्रकार की रूटीन इन्होंने इम्पोज कर दिया, थोप दिया बेचारे रिच पुअर पीपल पे, रूरल पीपल पे, जो कॉमन विलेजर्स थे। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, समटाइम्स कभी कभी, आई फील, आई यहां कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि समटाइम्स आई फील, आई मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट, poet feels what the poet feels himself कि he can hardly bear। अब उससे जो पुअर पीपल हैं, जो विलेजर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी पैथेटिक कंडीशन को अब वो बियर नहीं कर सकता। द थॉट ऑफ सो मच, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वे, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसकी एक लॉन्गिंग है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि एनी हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दीज पुअर पीपल, रूरल पीपल, लेकिन नथिंग इज इन हिज हैंड, उसके हाथ में कुछ नहीं है। और जब ये लॉन्गिंग उसकी क्या हो गई है? चाइल्डिश लॉन्गिंग है, बच्चों वाली है, कि काश एक हमारे हाथ में स्टिक होती, मैजिक स्टिक, और उस मैजिक स्टिक से मैं इन सारे पुअर फार्मर्स, रोड साइड ड्वेलर्स, वेंडर्स को टच करता और सारी प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाती। लेकिन ये सारी जो लॉन्गिंग है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है कुछ कर गुजरने का, फॉर द सेक ऑफ द विलेजर्स, वो क्या है? इन वैन, वैन मतलब होता है यूजलेस, बेकार की चीजें हो गई हैं, ये केवल चाइल्डिश लॉन्गिंग बन के रह गई और बेकार है। कोई सांता क्लास नहीं आने वाला है और उनकी प्रॉब्लम को दूर करने वाला है। द सैडनेस दैट लर्क्स, लर्क्स का मतलब होता है बेटा झांकना, नियर द ओपन विंडो देयर, कह रहे हैं कि अगर आपको उनकी प्रॉब्लम को समझना हो, उनकी सैडनेस को देखना हो, पैथेटिक कंडीशन को देखना हो, तो आप उनके जो विंडो है पीछे जाओ, जो ओल्ड हाउस है उनका, ओल्ड हाउस के विंडो से, टीन सेट के पीछे जो उनका रेजिडेंस है, उस ओपन विंडो से उनकी पैथेटिक कंडीशन को देख सकते हो। उनके पास कुछ भी नहीं है, न उनके पास गैस का कनेक्शन है, न प्रॉपर यूटेंसिल्स हैं, न गैजेट्स हैं, कुछ भी नहीं है, और वो चुपचाप उस पैथेटिक कंडीशन में आज अपने 2 जून की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिक इम्यूनिटीज है ही नहीं कुछ वहां। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, तो दे वेट्स ऑल डे, दैट वेट्स ऑल डे on and in almost open prayer. These roadside vendors, they are waiting all day. What they are waiting all day? Customer. इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, सुबह उठते हैं नहा धो के, धूप बत्ती आके अपने ट्रेन सेट में जलाते हैं, फिर वो प्रेयर करते हैं गॉड से, ये गॉड, मे गॉड सेंड अ कस्टमर हियर फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। पोएट यहां कहता है कि फाइनली उनकी जो प्रेयर है वो ग्रांट हो गई, सुन ली गई प्रेयर, और उसका रिजल्ट क्या रहा कि फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक, स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स का मतलब होता है बेटा साउंड ऑफ ब्रेक। एक दिन एक कार आके वहां रुकती है, वन डे ए कार स्टॉप्ड एंड यू कैन लिसन, यू कैन hear the squeal of brakes, the sound of brakes, and the sound of stopping car of all the 1,000 selfish car. It means 1,000 selfish car. सेल्फिश कार में बेटा कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज है? ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ये ध्यान रखना, ये बहुत पूछता है। सेल्फिश कार, सेल्फिश कार्स का मतलब यहां क्या है? ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, लिटरेरी डिवाइस यहां ट्रांसफर्ड एपिथेट है। डिस्क्रिप्शन है यहां सेल्फिश कार, पोलिश ट्रैफिक, ये सब जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट है, लिटरेरी डिवाइस। तो एमंग द थाउजेंड्स द लग्जरियस कार ऑफ द रिच पीपल दैट पास थ्रू द हाईवे आर एक्सप्रेस, दैट पास थ्रू द रोड साइड स्टैंड जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट फार्मर्स प्राइजेज आर। तो एक दिन मुश्किल से
जब उन्होंने ढेर सारा प्रेयर वगैरह किया तो एक कार आके रुकती है, अ सेल्फिश कार, एमंग थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार वन कार स्टॉप्ड देयर बट जस्ट टू इंक्वायर व्हाट फार्मर्स प्राइजेज आर। उसमें से एक उतरता है, नीचे कार से आता है और वो क्या पूछता है, प्राइजेज। और जैसे ही वो फार्मर्स प्राइस बताता है, पुअर फार्मर तुरंत मुंह बनाता है और आगे बढ़ जाता है, ओ इट्स टू कॉस्टली। बड़े बड़े मॉल में हम भले ही 499 है तो 500 दे के आ जाए, लेकिन अगर कोई रोड साइड स्टैंड है तो वहां बार्गेनिंग करने की आदत है, वहां हम बार्गेनिंग जरूर करेंगे। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली अ प्लो अप क्रॉस, तभी दूसरी कार वहां स्टॉप होती है। वन डिड स्टॉप, अनदर कार स्टॉप्ड देयर बट ओनली टू प्लो अप क्रॉस, लेकिन उसने क्या किया, प्लो अप क्रॉस। प्लो अप क्रॉस मतलब जो रोड साइड स्टैंड के सामने ग्रास वगैरह थी, जो थोड़ा उन लोगों ने छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह लगा रखे थे, उनको भी प्लो अप कर गया। प्लो अप मतलब कुचल दिया। क्यों, इन यूजिंग द यार्ड्स टू बैक एंड टर्न अराउंड, क्योंकि ही हैड फॉरगेटेड हिज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन भूल गया था, वो आगे निकल आ गया था, रास्ता भूल गया था। तो जब उसने रास्ता पूछा और वो फार्मर ने बताया कि आप तो आगे आ गए हैं, आपको बैक जाना पड़ेगा, तो अपनी कार को बैक करने के लिए उसने उसी फार्मर्स यूजिंग द यार्ड, उसी फार्मर्स के यार्ड को यूज किया। और यार्ड को यूज करने के बाद उसने क्या है, प्लो अप ग्रास, जो भी ग्रास प्लांट छोटे मोटे वहां लगे थे सबको प्लो अप कर दिया, कुचल दिया। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट was bound, तीसरी कार, थर्ड वन, अनदर थर्ड वन कार स्टॉप देयर, आस्क द वे, ही वॉज आस्किंग द वे, कि वेयर द वे इट वॉज बाउंड, ये रास्ता कहाँ जाएगा, अपना हमारा डेस्टिनेशन यहाँ है, हाउ आई विल रीच देयर। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई जब एक जो चौथी कार, फोर्थ वन कार, अनदर कार टू स्टॉप देयर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। क्या मजाक बनाया उसने उस फार्मर का। जैसे ही कार से उतरा पूछता है, यू हैव गैलन ऑफ गैस। गैलन ऑफ गैस का मतलब बेटा यहाँ उससे है आपका सीएनजी से, गैलन ऑफ गैस। अब उसके अपनी कार के लिए सीएनजी गैस चाहिए थी, या हो सकता हो पेट्रोल चाहिए था, जो भी हो, जो भी फ्यूल उसको चाहिए था, तो उसकी बात करता है, गैलन ऑफ गैस है। दिस कुड नॉट, दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, और इतना सुनते ही जो जो फार्मर था, ही हैड लॉस्ट हिज टेम्पर। दिस क्रॉसली, क्रॉसली मीन्स इट मेड हिम एंग्री, and not only the farmers, even Robert Frost, he also got angry of this cross question कि could they sell it a gallon of gas। उसको कहता है कि तुम्हारी आंखें है नहीं क्या, तुमको दिखता नहीं कि इस टीन शेड पे हम सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट सेल कर रहे हैं, या फिर यहां हमने पेट्रोल पंप खोल रखा है। अरे गैलन ऑफ गैस, सीएनजी गैस, पेट्रोल, डीजल कहां मिलेगा, फ्यूल तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा ना, या रोड साइड स्टैंड पे मिलेगा। दे हैड नन, डिडंट इट सी, आपको दिखता नहीं। फिर लास्ट स्टेंजा, नो इन ए कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। पोएम थोड़ा लंबी है बेटा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, इस पोएम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, लास्ट इन द लास्ट पोएम, in the last in the last stanza of this poem, the poet Robert Frost, he says, he is asking the question to the authority, to the government, कि no in country money, it means government has no any budget in this country, there is no money. No money means no budget for these roadside vendors, no budget for these rural people. The country scale of gain, and these rural people, these villagers, these roadside vendors do not come in the scale of gain। क्या ये टैक्स नहीं पे करते, इसलिए इनके लिए कोई बजट नहीं है सरकार के पास, एक नेशन के स्केल ऑफ गेन में नहीं आते, ये गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए इनका नहीं सुना जा रहा है स्केल ऑफ गेन। द रिक्विजिट, रिक्विजिट मीन्स होता है रिक्वायर्ड, टू मच रिक्वायर्ड, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट करना है कि यहां गवर्नमेंट को लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, बहुत बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। हम कहते नहीं कि इस चीज के लिए स्पिरिट चाहिए,
इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो उसमें प्लेयर में क्या होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए। तो द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट कह रहा है कि गवर्नमेंट में इट इज टू मच रिक्वायर्ड। व्हाट टू मच रिक्वायर्ड? द लिफ्ट ऑफ स्पिरिट इज रिक्वायर्ड। स्पिरिट, बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है गवर्नमेंट को, हैज नेवर बीन फाउंड। लेकिन what is irony here? Government has no spirit for these common people, for these poor people. गवर्नमेंट की जितने भी प्लान है, स्कीम है, वो, वो कुछ भी जो है इन पुअर पीपल या रूरल पीपल के लिए नहीं है। उन्होंने जो भी प्लान बजट बना रखा है सिटी के लोगों के लिए, रिच पीपल के लिए, नॉट फॉर पुअर। और यही रीजन है, हम देख सकते हैं कि हमारे ही देश की प्रॉब्लम नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने कंट्री यूएसए की प्रॉब्लम को वेल एक्सप्लेन किया है। सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री की ये दशा है। वहां भी जो कॉमन पीपल हैं और रिच पीपल हैं उनके बीच में कितना एक वाइडेंड गैप बना हुआ है। Or so the voice of the country seems to complain. Correct? That is the reason, the voice of the country. Voice of the country. Who is the voice of the country? Voice of the country is the poor people, the roadside dwellers, the rural people. They are the country, the voice of the country. Correct? Voice of the country seems to complain. यही रीजन है कि these voice of the country, these rural people, these roadside vendors, they are complaining. But their complaint is not being heard by the current government. Earlier government has met the promises, and nowadays even the current government is not solving their problem. I can't help owning the great relief it would be. अब यहाँ poet कहता है I can't help, and here the poet is also helpless. I can't help. Who is saying this? Poet Robert Frost is saying this कि I can't help them. I am also, I find myself helpless. I can't help them. Owning the great relief it would be. Correct? It would be the great relief. Correct? If government is unable to resolve the problem of these roadside vendor, so the great relief it would be. Correct? The great relief would be means it would be very great relief for these roadside vendors, these poor people. The government should send their forces, their army. They will come there and they will make ओपन शूट फायर। ओपन फायर करा है कि रात के अंधेरे में गवर्नमेंट अगर उनकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकती तो अपना चुपचाप अथॉरिटी को भेजे, आर्मी को भेजे, सोल्जर भेजे, वहां ओपन फायर कराए। रिलीफ इट वुड बी एंड टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक कराए कि इट वुड बी द ग्रेट रिलीफ फॉर दीज पीपल, टू पुट दीज पीपल इन, एक झटके में उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। वो सभी दे विल बी आउट ऑफ दियर पेन। मतलब अगर देयर विल बी जेनिसाइड, मास किलिंग करा दे गवर्नमेंट, तो इट वुड बी द ग्रेट रिलीफ फॉर दीज पीपल इन वन स्ट्रोक एंड दे विल बी आउट ऑफ दियर पेन इन वन स्ट्रोक। कहने का मतलब इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू एलिमिनेट पॉवर्टी, अगर वो गरीबी को दूर करने में नाकाम है तो पूरी तरह से फेल्योर है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? किल द पुअर। करेक्ट? इफ यू आर अनेबल टू किल द पॉवर्टी इट वुड बी बेटर फॉर द गवर्नमेंट टू किल द पुअर। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब पुअर लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन कहेगा कि यहाँ पॉवर्टी है, यहाँ गरीबी है। तो बहुत एकदम फ्रस्ट्रेट होके पोएट इस टाइप का क्वेश्चन गवर्नमेंट से कर रहा है। इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, टू अपलिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड, तो इट वुड बी बेटर टू मेक द सूट फायर देयर एंड इन दिस वे दे विल बी आउट ऑफ देयर पेन फ्रॉम वन स्ट्रोक। एक ही झटके में उन सभी जो है अपने सारे पेन से, सफरिंग से, सारों से बाहर चले जाएंगे सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो इट मीन्स इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू एलिमिनेट द पॉवर्टी तो इट वुड बी बेटर टू किल द पुअर। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेंस, सोचने को तो अपनी फीलिंग्स में, भावनाओं में आके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इतना सोच लिया।
जेनिसाइड के बारे में सोच लिया कि इससे बढ़िया है जो लास्ट अटेम्प्ट जीवन का बचता है ना, कहते हैं कि काश मर जाए, अब इस दुनिया में अगर ऐसे कष्ट सके ही रहना है तो इससे अच्छा न रहे। तो वही करेगा, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सी, इनटू द सेन, सेन का मतलब होता है बेटा सेंस। अगले दिन जैसे ही उसको अपने कॉमन सेंस में आया, अगले दिन, एक दिन पहले तो वो सोच लिया शाम के टाइम, लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में जैसे ही वो अपने सेंसेज में आया पोएट, तो उसने कहा कि आई वंडर्ड हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू। उससे सोचा कि नो, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, इफ वी कांट हेल्प देम तो वी हैव नो राइट टू किल देम। उनको मारने का अधिकार कौन दे दिया? जब जो अधिकार मिला है किसी गवर्नमेंट का, एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल ड्यूटी है, हेल्प करना, सबको जो है समान नजर नजर से देखना, इक्वलिटी, और जब वो चीज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये भी नहीं राइट है किसी को किल करने की। तो एक आई वॉन्डर्ड हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, करेक्ट, आई वॉन्डर्ड, आई मीन्स पोएट रॉबर्ट फर्स्ट। अब रॉबर्ट फर्स्ट कहता है आई वॉन्डर्ड हाउ शुड लाइक यू टू कम टू मी, ओ ही अपील्स टू द roadside vendors कि now they should come to me, कहता है come to me, now all you unite yourself, all you will get together, all you come on the common platform, all you come to me and I will do you the leadership। क्योंकि आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, whatever the problems they are facing, uh, they are the sufferer. The reason behind this is there is a lack of leadership among them. So here poet Robert Frost, he is ready to give them leadership, कहता है I am ready to help you, please unite yourself, come to me and offer to put my, and offer, here the poet is offering to put me gently out of my pain। And here poet is telling if these common people, these poor people, they will come to him, so what he will do? So he will definitely gently relieved from his pain and agony of seeing the miserable condition of these people, कहता है out of my pain। तो he wonders, here the poet wonders, I wondered, he wonders what if someone else think in the same manner for him, to that he is gently relieved from his pain। कोई आए हमारी तरह और उनकी प्रॉब्लम को सुने। तो आई होप ऑल यू हैव वेल अंडरस्टूड दिस पोएम। आई हैव we have gone through line by line, word by word of this poem, a roadside stand। इस पोएम को अच्छे से करना, वीडियो को अच्छे से देखना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम निशाकांत ऑफिशियल में, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। और इसमें इसके अगर इस पोएम के उसकी बात करें हम, तो लिटरेरी डिवाइसेज की, तो पहले ही मैंने बताया है पोलिश ट्रैफिक, सेल्फिश कार एक ट्रांसपेरेंट एपिथेट है। पर्सनिफिकेशन की बात करें, द सैडनेस दैट लर्क्स बिहाइंड द विंडो, यहाँ पर्सनिफिकेशन है। द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ये भी पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन ए बिगिनिंग लाइन, यहां से रोड साइड, थर्ड लाइन, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ये आपका पर्सनिफिकेशन है। एलिट्रेशन है, ग्रेडी गुड डूअर्स, जी जी कॉन्सोनेंट का यहाँ रिपीटिशन है। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये भी आपका एलिट्रेशन है। पैथेटिकली प्लेड, पैथेटिकली प्लेड, पीपी, ये भी आपका यहाँ एलिट्रेशन है। और फिर ऑक्जीमोरन की बात करें तो ग्रीडी गुड डूअर्स, ये आपका ऑक्जीमोरन है, यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि जो गुड, एक तरफ तो गुड डूअर्स की बात हो रही है, एक तरफ उसके ग्रीड की। और बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये भी आपको ऑक्जीमोरन है। तो ग्रीडी गुड, एलिट्रेशन भी है इसमें, ऑक्जीमोरन भी है। अगर ऑप्शन में ऑक्जीमोरन नहीं है तो एलिट्रेशन, अगर एलिट्रेशन नहीं तो ऑक्जीमोरन की तरफ जाएंगे हम। ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये आपका लिटरेरी डिवाइसेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कितने मिनट का